Okay, so in this section now, we are going to go through the sums of increasing and decreasing functions. So the first sum here which we have is show that fx equal to x cube plus 10x plus 7 is strictly increasing for all x belongs to the set of real numbers. So what are we going to do is we're going to prove that it is strictly increasing. Now what's the condition for strictly increasing function? For a condition for strictly increasing function is that derivative f dash x has to be greater than 0. It has to be greater than 0. That's the condition. So for all real numbers here, because we have to prove that it is an increasing function for all real numbers. So for all real numbers here, derivative must be greater than 0. Then only the function will be known as a strictly increasing function. Okay. So we start with the function fx. Fx is equal to x cube plus 10x. Now f dash x, right, x cube plus 10x plus 7. So when I'm finding the derivative, that is f dash x, so when we find f dash x, it turns out to be 3x square plus 10. So the derivative is 3x square plus 10 for this function here. Now I see that for all real numbers, whatever the real numbers are, we get x square as greater than or equal to 0. So you take any real number, you square that real number. It will be either greater than 0 or least it will be 0 square equal to 0. Right? So 1 square, 1, 2 square, 4, minus 1 square is also 1, minus 2 square is 4, and 0 square is the least, that is 0. So x can be any real number, including 0. The square will be either 0 or greater than 0. So 3x square, therefore, 3x square is greater than or equal to 0. 3x square is greater than or equal to 0. 3x square plus 10. 3x square plus 10 therefore is greater than or equal to 10. So that means for all real numbers, f dash x is greater than or equal to 10, which ultimately means that the function has a derivative which is greater than 0. So therefore I have proved that the function is monotonically increasing, strictly increasing. The derivative is always greater than 0. Whatever is the input, whatever value, real value of x you put in this function, it is going to be, the derivative is going to be greater than 0. The function is strictly increasing. Okay. Now it's not required here, it's not asked to plot the graph, but how the graph would be, I'm trying to explain that here. So for the graph, yes, we have to show that this polynomial is going to be strictly increasing with the least derivative. Least derivative you will get at this point, the point will be 0, 7. Okay, so we have x-axis, we have y-axis. The least derivative value will be when x is 0. So when you're putting x as 0, the least derivative you're going to get is 10. When x is 0, you'll get the least square and you'll get the least derivative. The least derivative is going to be 10. So graph is going to increase monotonically. Graph is going to increase monotonically like this. It's going to increase. It is going to pass through 0, 7. It is going to be further increasing only, right? So the least derivative means the tangent which you get here has slope as 10. That is at 0, I would say 7.
So we have the derivative here as 10. Okay, this is not the exact graph, I would say. It is the estimation, it is the rough estimation of this graph, right? It is not the exact to the scale, but this is how the graph is going to go, and it is going to be increasing monotonically. The graph is going to increase monotonically, and it is going to strictly increase from minus infinity to infinity, right? So it will strictly increase from minus infinity to infinity. Yes, so I have proved by showing that derivative is greater than जीरो ऑलवेज. कोई भी रियल नंबर ले लो, डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, और अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. माइनस इंफिनिटी पे क्यूब में माइनस इंफिनिटी आएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी में ये पॉलिनोमियल में ये क्यूब में इंफिनिटी आएगा. सो ग्राफ विल गो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी in one stroke. It is monotonically increasing. Okay, let us have a look at the next sum. Now in the next sum, what we have to do is we have to find the values for which fx is monotonically increasing / monotonically decreasing. Okay, again, to do that we'll need fx, because we have to find out when the function is monotonically increasing, we have to find out when the function is monotonically decreasing. So for that I need fx. Function fx is going to be x cube plus 12x square plus 36x plus 6. Okay, so we are going to differentiate this function f dash x. हम लोग इसको differentiate करते हैं तो क्या मिलेगा, 3x square plus 24x plus 36. Okay, from this I can say हम लोग 3 निकाल देते हैं बाहर, 3 निकाल देते हैं बाहर. What you're going to get is x square plus 8x plus 12, which we can factorize and write it as x plus 6 into x plus 2. Okay, so x plus 6 into x plus 2, that is what the derivative is. Now we want to find out when the function is monotonically increasing. So we get fx is monotonically increasing if f dash x is greater than 0. fx is monotonically increasing if f dash x is greater than 0. So I would say therefore 3 into x plus 6 into x plus 2 is greater than 0, right? So what I want is this product to be greater than 0. Now when will the product be greater than 0? There has to be two cases. There will be two cases. So हम लोग को थियोरेटिकली ऐसे सॉल्व करके बताना है इन HSE, बट हम लोग ने साइन चेंजिंग जो है वो इंटरवल्स सीखा हुआ है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू ट्राई टू फिगर आउट कि ये कहाँ पे इंक्रीजिंग है फंक्शन, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, अकॉर्डिंग टू द इंटरवल्स विच आई हैव taught you in the class, like this, right? We are going to have here, see, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि -6 आएगा, सो वी आर गोइंग टू हैव -6. फिर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि आगे जाके यहाँ पे -2 आएगा, राइट? एंड देन वी सी द साइन चेंजेस. द साइन चेंजेस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट, इट इज गोइंग टू बी प्लस. फिर x प्लस 2 के कारण -2 को जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो x प्लस 2 नेगेटिव हो जाएगा एंड द फंक्शन विल हैव नेगेटिव साइन. एंड देन अगेन व्हेन वी क्रॉस माइनस तो क्या साइन हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव साइन हो जाएगा. सो इससे मुझे रफ इंडिकेशन आ जाएगा ग्राफ का कि ये मोनोटोनिकली ऐसा इंक्रीजिंग होने वाला है -6 तक. फिर -6 पे आपको डेरिवेटिव 0 मिलेगा, फिर वो डिक्रीज होने वाला है -2 तक.
वापस -2 पे आपको डेरिवेटिव 0 मिलेगा और फिर वापस वो इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल गो टिल इन्फिनिटी। तो -∞ से ग्राफ आएगा, इंक्रीज होगा -6 तक, फिर डिक्रीज होगा -2 तक। ये इंक्रीजिंग होने के बाद यहाँ पे मैक्स वैल्यू क्या है वो मालूम नहीं है मुझे, वो फाइंड करना पड़ेगा। दैट विल बी f of -6। तो मैक्स वैल्यू क्या है वो मालूम नहीं है, मिनिमम वैल्यू क्या है वो मालूम नहीं है, वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो इट इज इंक्रीजिंग, देन इट इज डिक्रीजिंग, तो यहां पे आता है मैक्सिमा, देन इट इज अगेन इंक्रीजिंग, तो यहां पे आता है मिनिमा। तो ये मैं कर सकता हूं, वेरी सिंपल तरीके से मैं कर सकता हूं। व्हाइल डूइंग द एमसीक्यूज आई कैन जस्ट प्लॉट दिस फंक्शन का साइन चेंजेस, एफ डैश एक्स का साइन चेंजेस, इट इज प्लस माइनस प्लस एंड अकॉर्डिंगली इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग अगेन। सो ये जो ग्राफ है वो ऐसा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लाइक द प्रीवियस ग्राफ नहीं आने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू ऑलवेज इंक्रीज, इट इज गोइंग टू इंक्रीज फॉर सम टाइम, then it is going to decrease, and then again it is going to increase further. So it is increasing, decreasing and increasing. Okay, so that is how we do the function increase, decrease, increase. Okay, so ये हम लोग डायरेक्ट यहां से लेके यहां जाएंगे while doing MCQs, डायरेक्ट यहां से लेके यहां पे हम लोग जाएंगे while doing MCQs। बट जब हम लोग HSC में कर रहे हैं तो HSC में आपको ये प्रोसीजर स्टेप वाइज फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो स्टेप्स क्या है व्हेन द प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव? सो आई विल से केस 1 व्हेन बोथ x plus 6 is positive and x plus 2 is positive। एंड दूसरा केस क्या होगा, या तो फिर दूसरा केस क्या होगा, x plus 6 is negative and x plus 2 is also negative। दो केस रहेगा। I repeat, there will be two cases। Case 1, x plus 6 is positive, x plus 2 is positive। Case 2, x plus 6 is negative, x plus 2 is negative। दो केसेस रहेगा, राइट? तो फर्स्ट केस जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहां पे आता है x ग्रेटर देन -6 एंड x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -6, x ग्रेटर देन -2, दैट इज फर्स्ट केस। ओके, सो ये हम लोग का फर्स्ट केस का रिजल्ट है। देन हम लोग सेकेंड केस जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सेकेंड केस में क्या आता है, x less than -6 and at the same time you should have x less than -2। ओके, अच्छा अभी हम लोग इसको यहां पे इंटरवल बना के देखते हैं। सो वी सी दैट कि यहां पे -6 है, यहां पे -2 है एंड अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन, according to what we have got in the first case, x is greater than -2, x is greater than -6। so intersection कहां पे आ रहा है, एंड मतलब इंटरसेक्शन चाहिए, तो दोनों ग्रेटर देन -6 एंड ग्रेटर देन -2 कहां पे आ रहा है? तो आई वुड से दैट इज हैपनिंग व्हेन इट इज -2 टू इंफिनिटी, बराबर है। बट हम लोग के दो केस होते हैं, प्रोडक्ट पॉजिटिव होने के दो केस है, प्रोडक्ट पॉजिटिव होने के दो केस है, प्रोडक्ट पॉजिटिव होने के दो केस है जहां पे बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो बोथ आर पॉजिटिव मैंने सॉल्व किया हुआ है केस 1 में, बोथ आर नेगेटिव उसका भी हम लोग को ऐसे प्लॉट करना पड़ेगा। सो बोथ आर नेगेटिव व्हेन आई एम ट्राइंग टू प्लॉट, आई हैव हियर -6, आई हैव हियर -2 एंड इसमें हम लोग को बोला गया है x इज लेस देन -6, लेस देन -6 मतलब अब लोग को ऑब्वियसली यहां से लेफ्ट में जाना है, x इज लेस देन -2 हम लोग को यहां से भी ऐसा लेफ्ट में जाना है। एंड वेयर इज द इंटरसेक्शन, वेयर डू आई सी द इंटरसेक्शन? आई सी द इंटरसेक्शन फ्रॉम -∞ से -6। सो इट इज आइदर x ग्रेटर देन -2 और इट इज x लेस देन -6 ना। सो हम लोग का फाइनल आंसर क्या होना चाहिए?
फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? फाइनल आंसर विल बी, यू कैन से एफ डैश एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग for all values of x belonging to minus infinity से minus 6 union we are going to get minus 2 से infinity, minus infinity से minus 6 union minus 2 से infinity exactly. so यहां पे हम लोग ने वो पहले ही कर लिया था शॉर्ट में. अगेन रिमाइंड करता हूं मैं कि जब हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, एफ एक्स आया, एफ डैश एक्स आया, सीधा साइन चेंजेस पे आ जाएंगे. इट इज गोइंग टू बी प्लस माइनस प्लस, आई नो अकॉर्डिंगली. अभी ये डेरिवेटिव्स का साइन चेंज है, हाँ, फंक्शन का नहीं है, डेरिवेटिव्स का है. तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, फंक्शन ना -6 तक इंक्रीज होगा बिकॉज डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फिर -6 से -2 डिक्रीज होगा बिकॉज डेरिवेटिव नेगेटिव है, फिर -2 से आगे फंक्शन ना वापस इंक्रीज होगा. सो इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज. दैट इज व्हाट द फंक्शन का ग्राफ इज. रफ ग्राफ, एस्टिमेटेड ग्राफ, जैसे मैंने प्रीवियस सम में बताया था वैसा ही एस्टिमेटेड ग्राफ है ये. बट अगर हम लोग को एचएससी में सॉल्व करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, तो यू विल हैव टू डू दीज स्टेप्स. यू विल हैव टू डू दीज स्टेप्स जहां पे आपको बोलना है एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब, व्हेन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. अच्छा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब होता है प्रोडक्ट में, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव एट द सेम टाइम और बोथ आर नेगेटिव. अच्छा, बोथ आर पॉजिटिव कब होगा, हम लोग ने इंटरसेक्शन देखा -2 टू इंफिनिटी. बोथ आर नेगेटिव कब होगा, हमने इंटरसेक्शन देखा -infinity से -6. सो आइदर यू टेक अ वैल्यू फ्रॉम दिस इंटरवल, दैट इज -infinity से -6 में से वैल्यू उठाओ, उसको इसमें डालोगे तो दोनों नेगेटिव होगा बट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. और यू टेक अ वैल्यू फ्रॉम दिस -2 टू इंफिनिटी इंटरवल, इसमें डालोगे दोनों पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. सो आइदर यू टेक एन इंटरवल फ्रॉम अ वैल्यू फ्रॉम दिस इंटरवल बोथ नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, और यू टेक वैल्यू फ्रॉम दिस इंटरवल बोथ पॉजिटिव प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. ओके, सो हम लोग को एक इंटरवल मिला है यहां पे. अच्छा, वो इंटरवल को अगर हम लोग छोड़ दें तो बीच में वैल्यूज है क्या, -infinity से इंफिनिटी में, -infinity से -6, -2 से इंफिनिटी तो कवर हो गया है. अब -6 पे डेरिवेटिव 0 है, -2 पे डेरिवेटिव 0 है, वो स्टेशनरी पॉइंट्स में आ गया. तो बीच में बचा कौन सा इंटरवल है, -6 टू -2. वहां पे फंक्शन क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, बिकॉज ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है. अच्छा, तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं. हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे कि फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग है, और फिर जो बचा हुआ इंटरवल है वहां पे फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है. वैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट मेथड ऑल्सो. सो नाउ लेट अस सॉल्व डेरिवेटिव कहां पे नेगेटिव है. ओके, लेट अस फाइंड आउट डेरिवेटिव कहां पे नेगेटिव है, फंक्शन कहां पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है. सो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं. डेरिवेटिव हम लोग ने यहां पे निकाल दिया है, सो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप नाउ, ये इसके बाद से. ओके, सो आई विल से एफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. एमसीक्यूज में देखा आपने कितना फटाफट हो गया, कितना शॉर्ट में हो गया. बट अगर आप एचएससी पेपर लिख रहे हो तो यू विल हैव टू शो दिस स्टेप्स. ओके, सो फंक्शन एफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग if f dash x is negative, if f dash x is negative. okay, so function क्या है हमारे पास, 3 into x plus 6 into x plus 2 negative. okay, 3 into x plus 6 into x plus 2 नेगेटिव. प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, दो केस हो जाएगा. अगेन प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए तो आपको दो केस मिलेगा. The first case will be x plus 6 negative है and x plus 2 positive है.
सेकेंड केस आ जाएगा x+6 पॉजिटिव है एंड x+2 नेगेटिव है। आई रिपीट, दो केस हो जाएगा। एक तो अपना हो जाएगा प्रोडक्ट नेगेटिव होने के लिए दो केस होता है, आइदर x+6 इज नेगेटिव एंड x+2 इज पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, एंड यहां पे आएगा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव एज नेगेटिव। आपको एक ही फ्रेम में चारों पॉसिबिलिटीज मिल गया है, प्रोडक्ट का चारों पॉसिबिलिटीज मिल गया आपको यहां पे एक फ्रेम में। अंडरस्टैंड दिस। when will the product be positive? Either both are positive, both are negative ना। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज कवर हो गया, ये दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। अब बाकी दो पॉसिबिलिटीज कौन सा बचा है? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। अगेन आई रिमाइंड यू, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। ये लास्ट का जो दो मैंने बोला, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, उसके कारण प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। और यहां पे ये जो दो पॉसिबिलिटीज है उसमें प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। सो दो पॉसिबिलिटीज में प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दो पॉसिबिलिटीज में प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस फर्दर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे आपको वैल्यूज मिलेगा लाइक x is less than -6 and at the same time x is greater than -2। ओके, इस इंटरवल को अगर हम लोग चेक करें कि क्या हो रहा है यहां पे, एंड मतलब आपको इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज होना चाहिए, मतलब आपको नंबर -6 से छोटा भी चाहिए एंड उसके साथ नंबर -2 से बड़ा भी चाहिए। सो आई सी डायग्राम बना के तो दिख रहा है यहां पे कुछ ऐसा इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। -6 से छोटा चाहिए एंड -2 से बड़ा चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। -6 से छोटा मतलब आप इधर हो, वो -2 से बड़ा नहीं हो सकता है। सो देयर इज गोइंग टू बी नो इंटरसेक्शन हियर। सो यहां पे आपको बोलना है नो सोल्यूशन। ओके, द नेक्स्ट इज, यहां पे हम लोग आते हैं, इस केस में हम लोग देखते हैं यहां पे क्या बोला है, -6 -2। सो यहां पे आएगा x ग्रेटर देन -6 एंड एट द सेम टाइम x इज लेस देन -2। सो वी से x इज लेस देन -2 and at the same time x is greater than -6, and therefore finally we get an -6 से -2 intersection. So function monotonically decreasing कहां पे है? यहां पे -6 से -2. So there is a or in these two, right? So you get a or. Now हम लोग ने थियरी पढ़ा हुआ है, सेट थियरी पढ़ा हुआ है। Whenever you have a union or a or union या तो और दोनों बोल सकते हैं। So whenever you have a union or you have a or null set, so अगर आप null set के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस a आ जाएगा, राइट? वैसे ही अगर आप ये दोनों का यूनियन करोगे, और मतलब यूनियन, तो ये दोनों का यूनियन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही इंटरवल हमारा आंसर बन जाएगा। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -6 से -2। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट इन HSC। HSC में आपको पूरा स्टेप्स करके बताना पड़ेगा। सो द आइडियल सोल्यूशन फॉर द HSC वुड बी लाइक दिस। ओके, पहले आएगा फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब है वो पूरा फाइंड करेंगे हम लोग, राइट? बोथ पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, और उससे ही हम लोग को इंटरवल मिल जाएगा। अच्छा, इफ यू हैव सॉल्व्ड दिस फर्स्ट, देन डायरेक्टली तुम डिक्रीजिंग का लिख सकते हो। जो बीच में इंटरवल आता है -6 से -2, उसमें फंक्शन होने वाला है डिक्रीजिंग। बट अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया, इंक्रीजिंग वाला नहीं दिया है, तुमको डायरेक्ट डिक्रीजिंग अगर सोल्यूशन निकालना है, डायरेक्ट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का, सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग डायरेक्टली। fx is monotonically decreasing if the derivative is negative, and डेरिवेटिव नेगेटिव के दो पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे प्रोडक्ट नेगेटिव होने के दो पॉसिबिलिटीज है। इट इज नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, x+6 नेगेटिव इंटू x+2 पॉजिटिव। बट फिर हम लोग ने वो देखा वो पॉसिबल नहीं है,
तो सेकेंड केस में x प्लस सिक्स पॉजिटिव है, x प्लस टू नेगेटिव है, वो पॉसिबल है. तो x बिलोंग्स टू -6 to -2, and when you try to take the union of these two cases, you get -6 to -2. Okay, so that is where the function is monotonically decreasing. Okay, ये सब अगर हम लोग CT में कर रहे हैं या JEE में कर रहे हैं तो ये सब जो है वो करने का जरूरत नहीं है. You can directly from here, I would again remind you, ये फ्रॉम ईयर तुमको इधर आ जाना है बस. JEE में अगर आप कर रहे हो, CT में अगर आप कर रहे हो, तो यहां से आपको डायरेक्ट यहां पे जंप करना है. यहां पे डायरेक्ट आपको जंप करना है और यहां पे आपको इंटरवल प्लॉट कर देना है, प्लस माइनस प्लस. फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग, -6 के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग, -2 तक फंक्शन डिक्रीजिंग, फिर -2 के बाद अगेन इंफिनिटी तक फंक्शन इंक्रीजिंग. ये रफ estimated graph of this cubic function. Okay, so that is how these two examples are done. In the next video I'll be doing few more examples.